When I was a young girl, say I'm talking about a period like 20 or 30 years back, I still remember all the family or society related disputes or disagreements used to be sorted out, resolved within the four walls of a house. But now, my dear friends, things have changed. Hello, and welcome to another interesting session on careers related to public speaking. I'm your career coach, Richa Ghai, who is going to tell you about a very interesting career which many of you may not be even knowing. When I was a young girl, say I'm talking about a period like 20 or 30 years back, I still remember all the family or society related disputes or disagreements used to be sorted out, resolved within the four walls of a house. Our grandfathers, our parents always used to say, घर की बात है, घर ही में रहनी चाहिए, बाहर गई तो बदनामी हो जाएगी. But now, my dear friends, things have changed. The scenario is totally different. People are much more open, vocal about their problems, be it of any type. Earlier, the problems were in our control. Nowadays, the problems have started going out of control. People have become more educated. We are more liberated. However, this education and liberation has not given us enough of problem solving approach, skill, and attitude. And here comes the need of a third person. आपने देखा भी होगा, अमेरिका बार बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आने की कोशिश करता है एज अ मीडिएटर. उसका ये कहना, मानना और दावा है कि वो अगर बीच में पड़ेगा तो इंडिया और पाकिस्तान की सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाएंगे. ये बात और है कि वी इंडियंस आर नॉट इन द फेवर ऑफ ब्रिंगिंग एनी थर्ड पार्टी, थर्ड कंट्री between the ongoing problems, ongoing tussle that we are having with our neighboring country, Pakistan. So I dropped a hint here. If you noticed, the career that I'm going to discuss today has been mentioned while I was giving an example of America, India, and Pakistan. You guessed it right. Today's career, the career that I'm going to discuss today with you is that of a mediator. Now, what is a mediator? What is the role? I have already dropped a hint while I was giving the example of America trying to mediate and sort out the problem which is going on between India and Pakistan. The career that I'm going to discuss with you today is that of a mediator. Mediator. आप लोगों में से कई लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि मीडिएटर भी कोई जॉब होता है, कोई करियर ऑप्शन होता है जिसको वो चुन सकते हैं. If you are good at speaking, listening, and have a good command over problem solving abilities, then this job is for you. Now, to tell you in more details, let me begin by telling what is the job description of a mediator. Before I start telling you what is the job description of a mediator, let me tell you how many types of mediations are there. कहाँ एक मीडिएटर के रोल की हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कहाँ हम एक मीडिएटर को यूज करके अपने बड़े से बड़ा इशू, प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ मीडिएशन. पहले के जमाने में हमें यह भी नहीं पता होता था कि मीडिएशन के भी प्रकार होते हैं. समस्या है, बड़े बुजुर्ग बैठेंगे, गांव देहात में पंचायत बैठेगी, उसका समाधान निकल जाएगा. पर आज ऐसा नहीं है. आज के जमाने में जितने प्रॉब्लम्स, जितने कोर्ट केसेस
पेंडिंग हैं उसकी गिनती हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। खैर, बढ़ते हैं इस जॉब की तरफ जो आज का हमारा टॉपिक है। कहाँ कहाँ मीडिएशन चाहिए हो सकता है? फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक एक्शन, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जब लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच के झगड़े सॉल्व करने होते हैं। पड़ोसियों के झगड़े, कभी सोचा था कि इसके लिए भी हमें एक करियर बनाना पड़ेगा कि पड़ोसियों के झगड़े सॉल्व करें? ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल हु डोंट वांट टू यूज अ कोर्ट प्रोसेस। कोर्ट में इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, लोग डरने लगे हैं कोर्ट जाने से, सालों लग जाते हैं न्याय मिलने में। तो अब कौन काम आता है यहाँ पे? एक मीडिएटर। पर्सनल रिलेशनशिप्स, पहले के जमाने में डिवोर्सेस, सेपरेशंस कम ही सुनाई देते थे। आज करियर काउंसलिंग तो होती है, कपल काउंसलिंग, मैरिज काउंसलर, मीडिएटर्स वहां भी काम आते हैं जहां पर आपको अपनी शादी बचानी हो, अपना रिश्ता बचाना हो। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के भी ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें कि पब्लिक की अपनी कोई निधि, अपना कोई इंटरेस्ट कोई छीन रहा है और वहां पे मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है, एक मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मीडिएशन। आगे बढ़ते हुए और भी ऐसी जगह हैं जहां पर हमें मीडिएटर की जरूरत पड़ सकती है। बहुत कॉमन सी बात है, मैं अभी तक आपसे कह भी चुकी हूं, सेटलमेंट ऑफ लीगल इश्यूज। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना आज भी कई अच्छे घरों में एक शर्म की बात मानी जाती है। पीपल अवॉइड गोइंग टू पुलिस स्टेशंस एंड कोर्ट्स। पर्सनल इश्यूज might need a family or counseling led mediator, whereas legal and professional disputes के लिए we require a mediator with employment or commercial knowledge. जिस तरह का इशू होता है, इशू से मेरा मतलब प्रॉब्लम है, the type, the nature of issue decides the type and nature of the mediator. If the mediator has to deal with the legal aspect, naturally that person should be well aware of the knowledge and proper idea of that particular area, that is judiciary. Moving on, अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं जब मीडिएशन की जरूरत होती है। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, उसी को मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ। चाइल्ड कस्टडी अरेंजमेंट ड्यूरिंग डिवोर्स, ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि बच्चा किसके पास रहेगा। ऑफ कोर्स द लॉ इज लेड डाउन, हाउएवर द मीडिएटर प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन मेकिंग द पेरेंट्स agree to the mutual custody or a separate custody should be given or not. Crime related justice resolution, गुनाह बढ़ रहे हैं, उनसे जुड़ा जस्टिस डिले हो रहा है, उसमें भी कई बार मीडिएशन का बहुत ही क्रिटिकल इंपैक्टफुल रोल होता है। Employment disagreement, the employer has laid down certain rules, he forces the employee, or maybe the documentation did not carry few things, few duties which were to be followed or fulfilled by the employee, and the dispute rises. So here also mediator plays again an integral part. Moving on, कौन से skills चाहिए होते हैं to become a mediator? You all know that my sessions are mainly focusing on public speaking. So, public speaking skill तो mandatory है ही है, right? लेकिन उसके साथ साथ और कौन-कौन से roles हैं? उसके साथ साथ और कौन-कौन से skills हैं? चलिए उस पे भी रोशनी डालते हैं। The first, communication. Public speaking and communication go hand in hand. You cannot actually separate both of them because they both involve talking. They both involve speaking. Mediator needs strong writing and active listening abilities. बहुत अच्छा उसका communication होना चाहिए, ना सिर्फ बोलना, बल्कि writing and active listening abilities. Whenever I have a session, I always emphasize that to become a good communicator, you have to be a good listener more than a good speaker. सुनोगे तभी तो प्रॉपर रेजोल्यूशन निकाल पाओगे, राइट?
as you listen to the person, automatically you will figure out, you will find कि इस प्रॉब्लम का दिमाग में आपके चलने लग जाएगा कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस करियर का। स्पीकिंग तो मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन साथ में आपके अंदर जैसे होता है ना, हमारे घरों में भी होता है कि एक पर्टिकुलर अंकल, चाचा, बुआ, मौसी या आपका कोई फ्रेंड जब भी कोई तकलीफ आती है या कोई प्रॉब्लम या कोई कंट्रोवर्सी, कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है, कोई डिलेमा, कोई द्वंद आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो आप उन्हीं को अप्रोच करते हैं, उसी व्यक्ति को कांटेक्ट करते हैं जिसको कि देख करके या जिसके संग एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को अगर मैं अपनी बात कहूंगा तो ये व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देगा या उसका एक इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल देगा। हम हर किसी के पास नहीं जाते हैं क्योंकि ये स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सबके बस की बात नहीं होती है। पीपल स्किल्स, अब ये पीपल स्किल क्या होता है? इट मीन्स टू कीप पीपल काम in a highly stressful situation and to get them to keep talking in spite of the high levels of emotions they are experiencing। ये बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट मैंने आपसे छेड़ दिया कि पीपल स्किल में क्या होता है। ये स्किल होता क्या है? आपको जब नेचुरली मीडिएशन है तो दो लोग बात कर रहे हैं या दो पार्टीज बात कर रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों ही साइड्स के मेंटल कूल को बनाए रखें। वो एनरेज्ड हो, दे गेट infuriated, they get angry. Your role, your job is to silence them, calm them, pacify them, tell them not to lose temper and make the whole environment peaceful। चैलेंजिंग है थोड़ा, लेकिन अगर आप इसके रिजल्ट्स जानेंगे, इस जॉब के, इस करियर के रिजल्ट्स आर इक्वली सैटिस्फाइंग। एक मुश्किल काम ही बड़े सक्सेस की तरफ आपको ले जाता है। आसान रास्तों से सिर्फ छोटी उपलब्धियां ही हासिल की जा सकती हैं, ये मेरा मानना है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कहिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्किल कहिए, दे आर द सेम। टू सेटल डिस्प्यूट्स, प्रिवेंट लेबर स्ट्राइक्स, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फैक्ट्रीज में मीडिएशन करके काम ना रुक जाए, मजदूरों को, वर्कर्स को, लेबरर्स को समझाना। टू अवॉइड स्ट्राइक्स, बिकॉज स्ट्राइक और प्रोटेस्ट कभी किसी का फायदा नहीं कराती हैं, सिर्फ देश की इकोनॉमी का नुकसान ही होता है। रिड्यूस लिटिगेशन कॉस्ट एंड स्टॉप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम अदरवाइज accelerating finding resolutions to complex situations। Basically जो भी एक problematic situation है, किसी के भी बीच में उसको बढ़ने ना देना, प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी खत्म करके द प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग स्मूदन आउट हो जाए, ये एक मीडिएटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। इस काम में भी यू नीड टू एटलीस्ट हैव basic computer skills to maintain record. What have you done? What are the names of the companies? What are the names of the parties? उनको कैसे आपको एक प्रोसेस, एक रिकॉर्ड अपना मेंटेन करना है, that is done only with the help of good computer skills। Critical thinking. What is critical thinking? ये वो क्वालिटी है जो आपके अंदर लानी बहुत जरूरी है अगर आप एक मीडिएटर बनना चाहते हैं। मीडिएटर्स एनालाइज प्रॉब्लम, वो पूरी एनालिसिस करते हैं, दे जज, दे कैलकुलेट मेंटली कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। बिकॉज what happens is many a times you would realize if you become a mediator कि प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, सारी समस्या दिमाग में है, सारी प्रॉब्लम ईगो रिलेटेड है। तो आपको ये जानना, समझना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम है कहां। एंड देन यू हैव टू लुक फॉर satisfying solutions, think of strategies, think of methods, ways, solutions, ताकि उस प्रॉब्लम की आप जड़ तक जाके उसका एक इफेक्टिव, सक्सेसफुल
वो सोल्यूशन निकाल सके जो दोनों ही साइड्स को एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद लेट्स मूव अहेड। और क्या क्या हमें चाहिए होगा टू बिकम एन इफेक्टिव सक्सेसफुल मीडिएटर? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल, लेट मी टेल यू। Excellent listening skills, I have already mentioned that. The ability to speak clearly, calmly and confidently. आप मान के चलो दोनों पार्टीज हैं, गुस्से में भी आ जाएंगी, आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, भगवान ना करे हो सकता है कि आपस में हाथापाई की नौबत भी आ जाए। सो यू रियली हैव टू बी वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, सो दैट यू आर एबल टू calm them and let them not disturb the mediation process. ऐसा ना हो कि जिस मकसद से वो आपके पास आए हैं वो पर्पस ही फेल हो जाए, राइट? The ability to establish trust and build relationships. Naturally, trust बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। आप पे ट्रस्ट होगा तभी तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तभी तो वो आपसे ये उम्मीद करेंगे कि हाँ, यू हैव द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। Resilience to cope with challenging situations concerning people's life. Resilience मतलब देखिए, you are also a human being. You may also get bogged down. You may also feel a little disturbed by the ongoing argument, conflict, heated, exchange of words. There you have to brush it off your mind. Just remove that mess from your mind, bounce back and act as nothing has happened and again continue the mediation process. Yes, you need to be calm and composed, and if something goes wrong during the process, it's your job to remind yourself that you are just a mediator. You should not get carried away. Then the ability to manage conflict in a range of context. बात कुछ हो रही है, हम कहीं और पहुंच गए, ये गलती एक मीडिएटर से नहीं होनी चाहिए। What is the parameter? What is the boundary laid down? What is the issue? You have to discuss within the parameters of that particular problem. Let's not forget and get digressed, get distracted by the ongoing discussion or argument. This is also very important. Impartiality, to focus on the facts of a case without emotional bias. You are the third person there. There are two people or two parties. You have to be completely impartial. You cannot get inclined towards one of the parties. The reason could be any. It could be emotional bias or any other sort of bias. You need to maintain your demeanor, your stance of being completely neutral. मुझे किसी का पक्षपात नहीं लेना, वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है अंदर ही अंदर आपको पता हो कि सामने वाली जो दो पार्टीज हैं या दो लोग हैं, उसमें से एक इंसान पूरी तरह गलत है और दूसरा सही है, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत सोचना होगा। You have to have that impartial, neutral approach towards both the parties so that you do not give a partial and a unilateral decision. The decision has to be bilateral. A non-judgmental attitude. पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है। You cannot be the judge. आपका काम मीडिएशन तक है। ये जो एक थिन लाइन है ना, जिसको हमको क्रॉस नहीं करना है। आपका काम है मीडिएशन का, दोनों को साथ बिठाना, एक प्रॉपर कॉमन ग्राउंड पे लेके आना, ताकि एक समझौते पे हम पहुंच सके। आप जज नहीं बन सकते हैं, आप डिसीजन मेकर नहीं बन सकते हैं वहां पे। ये एक फर्क बहुत जरूरी है उस इंसान को समझना जो एस्पायर कर रहा है टू बिकम अ मीडिएटर। अब आगे बढ़ते हुए let me also focus on few more points. The ability to encourage, motivate and support individuals undergoing mediation. आपको उनको encourage भी करना होगा, उनको शांत भी करना होगा, उनको motivate भी करना होगा, उनको support भी करना होगा। कई बार फीमेल्स होती हैं, जब मीडिएशन चल रहा होता है तो एक पार्टी फीमेल होती है या दोनों पार्टी फीमेल्स होती हैं, तब वहां पर all the more it gets challenging because the emotions run very high. So you cannot be judgmental and you cannot say अरे औरतें तो बस रोती रहती हैं, अरे आप नहीं. You have to respect both the ladies or all the females sitting there who are in the process of mediation and support them
sail them through, and lead to a common, acceptable decision or a solution. Negotiation skills. नेचुरली नेगोशिएशन करना, अच्छा आपकी तरफ से ये ऑफर है, आपकी तरफ से ये है, आप सोचते हैं कि इसमें ये चीज कम हो जाए, आपको लगता है कि इस चीज में आप एग्री नहीं करेंगे, इससे कम में आप नहीं मानेंगे। बहुत सारी जगहों पे आपको नेगोशिएट करना होगा, चीजों को कम ज्यादा तोल के, कम ज्यादा करके एक ब्रिज बनाना होगा, ताकि वो जो गैप है दोनों पार्टीज के बीच में वो रिड्यूस हो जाए, खत्म हो जाए। राइट उसके बाद एम्पैथी एंड एन इंटरेस्ट इन वांटिंग टू हेल्प पीपल रिजॉल्व इश्यूज। यहां पे ना एक अच्छा मीडिएटर वही बन सकता है जो उस इंसान के अंदर खुद को देख पाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्पैथी। उस पे क्या बीत रही है अगर उसको आपने समझ लिया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो जिसके थ्रू वो लोग गुजर रहे हैं, सामने वाली पार्टीज, जो आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होंगी, उस दर्द को समझा होगा, चाहे आपके साथ ना हुआ हो, आपके घर में हुआ हो, आपके आसपास हुआ हो। तो वो जो एक सेंस आ जाता है ना कि हाँ मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकती हूं कि इनको कैसा लग रहा है, दैट इज द फीलिंग ऑफ एम्पैथी। अगर आपके अंदर वो है, सो इट गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, द कोर ऑफ द इशू एंड लीड टू अ प्रॉपर रेजोल्यूशन। इंटरेस्ट होना चाहिए सामने वालों की बातों में, उनकी प्रॉब्लम में। जब तक आप खुद को उसमें ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली नहीं शामिल नहीं करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे उस तकलीफ को। तकलीफ बड़ी हो छोटी हो ये बात की बात है, लेकिन उस तकलीफ को समझना, उससे रिलेट करना, अगेन आई रिपीट, इन्वॉल्व नहीं होना है पर समझना जरूर है कि हाँ इस तकलीफ में ये दो लोग हैं या ये पार्टीज हैं तो कैसा फील होता होगा। बस वो एलिमेंट आपके अंदर होना जरूरी है। द एबिलिटी टू रिलेट टू पीपल फ्रॉम अ रेंज ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स। आपका सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड कुछ भी होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको उन लोगों के साथ कैसे मेंटली जुड़ना है, नॉट इमोशनली। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इन ऑर्डर टू मैनेज अपॉइंटमेंट्स एंड केस वर्क। नेचुरली आपके पास अगर कोई आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब टाइम देना है, कब आप फ्री हैं, कब वो लोग अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से आपको अपना मीटिंग अरेंज करनी होगी। Planning skills to decide where and when to hold sessions. You have to plan the time and the place also. कोई टाइम किसी को सूट कर रहा होगा, अगले को नहीं कर रहा होगा। कोई जगह किसी को समझ में आती होगी, दूसरे को लगता होगा कि नहीं मैं वहां पे बैठ कर कंफर्टेबल नहीं फील करूंगा। तो ये भी आप ही का काम होगा कि एक कॉमन प्लेस और एक कॉमन टाइम डिसाइड किया जाए। टीम वर्किंग स्किल्स टू वर्क विद कोलीग्स एंड पार्टनर्स। आपके संग आपके जूनियर्स भी होंगे, आपके एसोसिएट्स भी होंगे, नेचुरली उनके साथ भी आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए। अ फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव अप्रोच टू वर्क। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम्स के प्रकार कई सारे हैं। द नेचर ऑफ प्रॉब्लम कैन वेरी फ्रॉम I don't know what end to what end. And the solutions can be also so varied, so diverse. You need to be creative. You need to understand that every person has a problem which is different than the problems you have solved earlier. हर आदमी आपके लिए एक नया चैलेंज लेकर आएगा। हर केस, हर प्रॉब्लम आपके लिए एक challenge होगी. It will be something like an opportunity under the garb of a challenge, and you have to think creatively to bring out again an effective resolution. A thorough understanding of confidentiality, very important. कई सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना is very, very important. You cannot leak out. You cannot share the personal and sensitive information pertaining to that case, that problem, or those parties with anybody. That is considered absolutely unethical. Now, और क्या responsibilities हो सकती हैं? Mediators often have several other daily responsibilities also. What are those?
अरेंज मीटिंग्स फॉर 2 or more parties to discuss an issue, ये तो बेसिक ही है इस काम का, एक फंडा ही यही है. इंटरव्यू विटनेसेस एंड अदर इन्वॉल्व टू गैदर इंफॉर्मेशन. अगर यहाँ पर गवाह शामिल हैं तो उनको भी प्रोब करना, उनसे भी सवाल जवाब करना, ये आपके काम बन जाएगा. अगर ये काम आपके पहले कोई नहीं कर पाया है तो एसेस डॉक्यूमेंटेशन टू कलेक्ट डेटा. डेफिनेटली आप मीडिएशन कर रहे हैं, आपके पास पूरे रिकॉर्ड्स होने चाहिए. डॉक्यूमेंट्स का अगर इन्वॉल्वमेंट है, अगर पेपर्स हैं कुछ, तो उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर स्टडी आपको करनी पड़ेगी ताकि आपसे कोई इंफॉर्मेशन छूट ना जाए. एडवाइस ऑन रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस. नेचुरली अगर कोई लीगल मैटर है तो उसमें आपका एडवाइस तभी अच्छा होगा, तभी करेक्ट एक्यूरेट होगा, अगर आपको खुद उस लॉ की या उन रेगुलेशंस की नॉलेज हो. गाइड कॉन्वर्सेशंस टुवर्ड्स म्यूचुअली अग्रीएबल कंक्लूजन्स. डिस्कशन जब हो रहा है, मीडिएशन प्रोसेस चल रहा है, ऐसी बहुत हाई चांसेस होती हैं कि वो पूरा का पूरा डिस्कशन भटक जाए, बात कुछ थी पहुंच कहीं गई. ये तब जरूर होता है जब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट, चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट, या इनफैक्ट प्रॉपर्टी में भी कई बार इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं. मेरे पिताजी ने मुझे दी थी ये प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट. तो और या दो भाइयों के बीच की लड़ाई है, तो इमोशंस रन वेरी हाई. सो देयर यू हैव टू ब्रिंग बैक दोज पीपल इनटू द focus of the discussion and not allow the discussion to go haywire. That is also very important. Draft non-binding agreements. Please, I emphasize on the word non-binding. क्योंकि आप एक मीडिएटर हैं, you are not holding the authority to draft binding agreements. तो non-binding agreements को आपको ड्राफ्ट करना आना चाहिए, which will lay down the first step of agreement that is going to be taken mutually. उसके बाद comes the role of the judge or any person or authority who has the power to get that solution decreed or finalized. These duties and more require many specialized skills that mediator learn through years of education, training and experience. इस काम में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, मैच्योर से मेरा मतलब मैच्योर इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, जितने ज्यादा आप केसेस डील करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज एंड एक्सपर्टीज यू विल गेट टू सॉर्ट आउट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड issues that you will be facing in years to come. Now, the question that must have popped in your minds by now is that yes, this job, this career sounds very interesting. However, what is the education and training needed to become a mediator? See, mediators do not need typically a special kind of education. However, having a basic knowledge of law and some understanding of legal language can help the individual excel in this career of mediation. कोई specified, कोई laid down education या कोई degree या training नहीं है to become a mediator, but if you have the knowledge of that particular field in which you are going to become the mediator, definitely that is going to give you an edge over the others who are in competition with you. Many employers seek mediators who have prior experience in mediation and on crisis resolution when seeking full-time employees for this position. Can you believe it? ये आज के ज़माने में full-time career बन चुका है और बहुत सारी बड़ी-बड़ी companies, organizations hire करती हैं mediators because उनको पता होता है कि आए दिन उनके काम के process में disputes ना चाहते हुए भी आ सकते हैं और उनको रिजॉल्व करने का काम एक अच्छा मीडिएटर ही कर सकता है, क्योंकि सारा सरदर्द कंपनी का सीईओ, प्रेसिडेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर अपने सर पे नहीं ले सकता है. देयर हैज टू बी अ डिपार्टमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. देयर हैज टू बी अ डिपार्टमेंट व्हिच विल डील विद द लीगल disputes, legal problems, legal aspects, and of course there is a need of a mediator in that same department. In order to be formally trained as a mediator in India, I'm referring to India only here, an individual must
undergo a 40 hours training program and conduct 20 mediation sessions under the Mediation and Conciliation Project Committee. ये एक मैंडेटरी लेड डाउन रूल है कि अगर आपको फॉर्मली ट्रेन होना है इंडिया में एज अ मीडिएटर, सो यू हैव टू अंडरगो 40 आवर्स की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और 20 ऐसे मीडिएशन सेशंस आपने किए हों सक्सेसफुली, जो कि आते हैं किसके अंडर? मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के अंदर. नाउ you must be wondering, what are the working hours? Working hours are naturally going to depend on the type of mediation. Let me tell you, I cannot categorically tell you that this is a typically 9 to 5 job, because it is not. It all depends on the type of mediation you are willing to provide. And you can also be a self-employed mediator. See, this is a very good opportunity if you want to be self-reliant, financially independent. Trust me, my dear viewers, this is an excellent opportunity, an excellent career profile which you should adopt if you are interested in becoming self-employed. आप चाहें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर सकते हैं. For example, family law-based mediation often takes place while clients' children are at school. आप चाहें तो आप फैमिली लॉ बेस्ड मीडिएशन तब कर सकते हैं. बात यहाँ चल रही है कि वर्किंग आवर्स क्या हैं. तो मान लीजिए कि दो पेरेंट्स हैं, सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स के लिए फाइल कर चुके हैं, तो नेचुरली आप उनके ऑफिस आवर्स या उनके बच्चों के स्कूल आवर्स कब हैं, ताकि बच्चों पे इस सारे मीडिएशन के प्रोसेस का असर ना पड़े. यू कैन इंश्योर दैट द चिल्ड्रन आर इन द स्कूल, सो वो टाइम आप चूज कर सकते हैं. या ऑफिस आवर्स के बाद यू कैन fix a meeting. Depending on the convenience, the comfort, and the availability of the client you are dealing with, you have to be flexible about your working hours. Office-based mediation services जो होती हैं usually operate an appointment service between 9 to 5. अगर office based है तो naturally client ये चाहेगा कि 9 to 5 के दौरान ही ये सारा mediation हो जाए. लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने लीगल मीडिएशन के बारे में बताया था, यहाँ भी ऑफिस के बाद भी आपसे कोई क्लाइंट कह सकता है कि नहीं, ऑफिस आवर्स में नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी मैनेज करने में. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स विल. वो कब कंफर्टेबल है, दैट वुड डिसाइड योर वर्किंग आवर्स. पार्ट टाइम वर्क एंड जॉब शेयरिंग आर बोथ पॉसिबल. जैसा कि मैं आपसे कह रही थी, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम का. आप इसको एज अ पार्ट टाइम करियर भी चुन सकते हैं और एज अ जॉब शेयरिंग भी आप इसको कर सकते हैं. लाइक, व्हाट इज जॉब शेयरिंग? यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर job profile, you are having a career, and parallelly you choose to have this also as a career, so you are actually doing two jobs at the same time. Salary. We all work for money, we all work for income. Livelihood is the most important factor a career is chosen for. Yahan bhi salary is important to be known. The average salary, I again emphasize on the word average. The average salary for a mediator in India is somewhere around 25,000 plus per month. Average है. अगर आप में से किसी को ये कम लग रही है तो let me tell you, you can always expand, increase your income with experience. Please don't get stuck on this figure, because this is just a data that is giving you an average. The average gross salary of a mediator in India is somewhere around 7 lakhs, or an equally hourly rate of 337 rupees. Again, I emphasize, average hai, don't get stuck, please. In addition, they earn an average bonus भी है इसमें, of rupees somewhere around 3,000. An entry level mediator जिसने just शुरू किया है अपना करियर, जिसके पास 1 से 3 years तक का एक्सपीरियंस है, earns an average salary of somewhere around rupees 4,94,442. This is a data collected, and I cannot stop reiterating, this is not the fixed amount. There is always scope for you
to take your salary higher than what I am mentioning in today's session. On the other hand, a senior level mediator जिसके पास 8 साल से ज़्यादा का experience है can earn an average salary of rupees 8,85,362 rupees. Right? So the salary is good in it, the income is very attractive, and if you really think that you have the skill which is needed, what skills basically I'm referring to? Out of several, a few that come at the top of my mind are good public speaking skills. You have a calm, composed nature. You have the ability of problem solving. You are good at analyzing the problems. You do not get carried away. You are able to empathize with the person or the parties. This job is a perfect match for you. In most cases, people voluntarily opt for mediation to mutually resolve their legal issue, making mediation in India a party-centric and neutral process. आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम out of hand जा सकती है, situation can go out of control. So I have seen in my life, in the society around me, that people mostly they volunteer to have a mediator. They want a mediator to take care of their problems. Right? तो इसका जो स्कोप है आज के ज़माने में बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के पास प्रॉब्लम ज़्यादा है, टाइम कम है. तो कौन अपना टाइम गवाए, कौन अपना रूटीन खराब करे, अपना मेंटल पीस डैमेज करे? Let's have a mediator and get done with that problem as early as possible is the attitude of our today's society. The following persons are disqualified. कौन मीडिएटर नहीं बन सकता है? चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. Person who has been declared as insolvent. Insolvent means a person who has not been able to pay back his or her loan or has been a defaulter, against whom criminal charges involving moral turpitude are framed by criminal court and are pending. What is moral turpitude? मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसपे कि कोई केस या मुकदमा पेंडिंग है कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, जहां पर उस पे ये इल्जाम लगा है कि उसने कोई गैर कानूनी या अनैतिक काम किया है. Somebody who has been charged and the case is still pending, जिसपे कि उस पे ये blame है, उस पे ये allegation है कि he has a record of misconduct, कि he has been charged for the unethical, unprincipled or illegal behavior. Persons convicted by a criminal court for any offense involving moral turpitude. पहले वाले पॉइंट में केस पेंडिंग है, तब भी वो इंसान एक मीडिएटर नहीं बन सकता है. और अगर वो इल्जाम साबित हो जाए उसके खिलाफ, तब तो उस इंसान के लिए मीडिएटर बनने के रास्ते बंद हो जाते हैं. क्योंकि एक इंसान जो खुद ही करप्ट है, खुद ही एक ऐसे इल्जाम के तहत उसको सजा मिल चुकी है कि उसने कुछ गलत किया है, वो खुद दूसरों के साथ जस्टिस या जस्टिस की शुरुआत in the form of mediation. What should you not say during mediation? Bhai, it's a job, it's a career related to speaking. और जबान चमड़े की है, फिसल सकती है. फिसलनी चाहिए नहीं लेकिन. So you really need to have control on your language, control on your words. You have to be very careful while talking. Avoid anything that is going to ignite further the ongoing dispute. ऐसा कुछ भी कहने से बचिए
जिससे कि जो डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो और बढ़ जाए। किसी भी पार्टी को, जब दो पार्टीज या दो लोग बैठकर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, बहसबाजी भी होती है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनमें से कोई भी आदमी या पार्टी अपने आप को बाहरी ना महसूस करने लगे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो डिस्कम्फर्ट फील करने लगे, दैट पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल. दैट शुड नॉट हैपन इन योर केस. योर लैंग्वेज, योर वर्ड शुड बी totally in control. Now, करना क्या चाहिए? Instead of doing what I said, you should not do, rather than alienating the person, what you should do is say difficult things in the least alienating way possible. I have told you what not to say. Now let's discuss what can be said. Say difficult things in the least alienating way possible. मुश्किल से मुश्किल, बुरी से बुरी बात आप इस तरह से कहिए कि सामने वाले को वो बात बुरी ना लगे, बल्कि समझ में आए. Again, selection of words is very important. Set ground rules to avoid attacking. Remember one thing, that avoiding saying unwelcoming things by having the mediator say them merely transfers the other party's resentment from counsel to the mediator. आप इस तरह से बात करिए कि जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट ना रह करके एक डिस्कशन बन जाए और वो चीज जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए और उसका एक सोल्यूशन जो दोनों ही पार्टीज को अग्रीएबल हो निकल के आ पाए. मीडिएशन 10 रूल्स फॉर सक्सेस. चलिए चलते चलते 10 रूल्स भी मैं आपको बता दूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो सक्सेस इज गारंटीड. रूल नंबर 1, द डिसीजन मेकर्स मस्ट पार्टिसिपेट. मैंने आपसे कहा था ना, आप डिसीजन मेकर नहीं होंगे, लेकिन डिसीजन मेकर का वहां होना बहुत जरूरी है. पता चला सारा डिस्कशन हो गया, मीडिएशन से सोल्यूशन निकल आया, लेकिन डिसीजन मेकर ही वहां प्रेजेंट नहीं है. कभी कभी ऐसा होता भी है कि डिसीजन मेकर वहां नहीं होता है, बट द पर्सन इज वेटिंग फॉर यू टू कम अप विद द सोल्यूशन एंड देन दैट पर्सन हु इज द डिसीजन मेकर इज कॉन्टैक्टेड. सो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है डिसीजन मेकर का. रूल 2, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट. बिना डॉक्यूमेंट्स के ये मीडिएशन का प्रोसेस बेसलेस है. बी राइट बट ओनली टू अ पॉइंट. आपका सही होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप सही होने को इम्पोज नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर. दैट बीइंग राइट हैज टू बी टू अ सर्टेन पॉइंट. बिल्ड अ डील. डील होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि आपके कुछ ऐसा कह देने से जो बात कंस्ट्रक्टिव वे में आगे भी बढ़ रही थी वो भी खराब हो जाए. Rule 5, treat the other party with respect. In fact, I would say treat both the parties with respect. आपके मन में है भी कि एक पार्टी गलत है, दूसरी सही है. ये ह्यूमन नेचर होता है. आपके दिमाग में आ जाता है कि एक आदमी गलत है या एक पार्टी गलत है. वो क्लियरली दिखने भी लग जाता है, लेकिन वो आपका काम नहीं है. आपकी रिस्पेक्ट, आपका ट्रीटमेंट टुवर्ड्स बोथ द पार्टीज शुड बी equal and decent. Be persuasive. The way you talk should be convincing enough. Your strategy, your skill, your method, whatever you adopt, should be in a positive direction. Focus on interest. Main मुद्दा क्या है? Main issue क्या है? Focus क्या है? Core of the dispute क्या है? उससे आपका ध्यान कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टीज का तो हट सकता है. बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर इंटरेस्ट. प्रॉब्लम सॉल्वर बनिएगा, क्योंकि वही तो मेन रोल है आपका. वर्क पास द एंगर. बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है, डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है. यू कैन नॉट बी अ पार्टी ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट. यू हैव टू बी न्यूट्रल, इम्पार्शियल. रूल 10, बी पेशेंट. कई बार एक मीडिएशन सेशन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. कई बार आपको एक और सेशन रखना पड़ता है या 3-4 और सेशन रखने पड़ जाएंगे ताकि एक प्रॉपर कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकाला जा सके. जितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी, शायद उतने ही ज्यादा सेशंस आपको और लग सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सीरियसनेस. Now, let me close my session today on a very interesting expression, lines said by Howard Rifa. What he mentions is,
A mediator is an impartial outsider who tries to aid the negotiators in their quest to find a compromise agreement. एक impartial बाहरी होता है, outsider होता है, जो कि कोशिश करता है दो लोगों को एक अच्छे, प्रॉपर, पॉजिटिव अग्रीमेंट तक लाने का। उसका काम होता है चीजों को सुलझाना। ये एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है अगर आपके पास स्किल्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस सेशन में बात कर चुके हैं। I hope you enjoyed my session. Thank you for being a part of this session. See you next time. Till then, bye bye.